So to start with, we have with us Dr. Ashish Mahindra, Professor CDCH Lucknow, member of Dental Council of India, and also Dr. Devendra Kumar, who is MBBS intern in Civil Hospital Gurugram and is a foreign medical graduate himself from one of the premium university of Russia. So, Dr. Ashish, to start with you, what is your opinion on the current situation? See, if we talk about particularly FMG, the role of our government was always doubtful. When it was MCI from, if we see from 2000, FMG exams were introduced. 2004, they tried level best to restrict the limit. Then court came into picture, and they through court we got the because foreign medical graduates have been never been a source, you can say, as a financially which can help if you compare from private college. So that's why the government is most of the time is least interested, very least they are interested. If you see in recent, if we see in COVID crisis, definitely there are more than 50,000 graduates who are waiting to even they are ready to work free of cost. Now it's up to government. They, if government decide, then the deficiency of this 75% of doctors can be meet up. Recent, we are also fighting a lot for this student. We are trying our level best through social media and even through legal channels. And recently, a few development we have seen, like Karnataka have taken the initiative, and then Gujarat, what you have told just now. And some more recent today development also I will update you all. It's very we can say promising, hopefully, because today I myself spoke to Hema Malini ji, MP Rajya Sabha, and she was actress also. So she has promised, and maybe tomorrow we will get more updates. Education Minister, and then she has called to our UPCM, and what we are trying for UP in next 2 to 3 days maximum, we may get a good news. And what you have said ki for that 3 month, that we discussed from them. What they said, ki let them at least join. If we start negotiating at this level, ki let it be 1 year, let it be the registration permanent, registration temporary, then again we will waste one more month in this discussion to get the solution. So what they suggested, these higher authorities to me directly, let them start first, let them join first. Then we will negotiate on table ki we are working for you, what we are getting in return. It's not, it should not be like that ki policy. What we are doubting, in fact, all the students have a doubt. If they just use and throw, then it will won't be of any use. Then they are not ready for this peanuts like 15,000 per month. They're what it should be like either you give registration, or this should be counted as internship, and once they are in there, then they give FMG exam. We are not asking you to you give rebate on that. They should be pass out without exam. It's not ethical actually. We also understand, but if they are working, because working in situation is a life threatening itself, and for a doctor, he is sacrificing his time, energy, and risking his life. So in return, it should not be like a bonded labor. It should be like a respect, some respect they want, and along with that, some reward they want in terms of not money, especially in terms of some degree or sometime what they can best. They are the best, better judge. We can just suggest. उनको कोविड में डॉक्टर देवेंद्र, एक कंफ्यूजन थी जो हेल्थ मिनिस्ट्री में दी गई. आई विल जस्ट टेल यू कि टुडे व्हाट हेमा मालिनी जी कहीं कि उनकी हेल्थ मिनिस्टर से एक बार बात हुई थी, एंड व्हाट पिक्चर दे हैव एक्चुअली, वो दे सेड कि ये वेंटिलेटर पे तो काम कर नहीं पाएंगे. मतलब व्हाट इमेज एक्चुअली फ्रैंकली व्हाट दे हैव, मैं आपको बता रहा हूँ. तो वो उन्होंने हमसे पूछा कि ये वेंटिलेटर पे काम नहीं कर पाएंगे, तो हमारे किस काम कहने का, मैम पहली बात तो जो वेंटिलेटर पे पेशेंट जाते हैं वो लेस देन 5% है. फर्स्ट. सेकेंडली, आपके इंडिया में अगर एमडी मेडिसिन, एमडी या गायनिक भी होगा, कोई होगा, तो वो वेंटिलेटर के लिए स्पेशलाइज नहीं होता है. वेंटिलेटर पे काम करना सिर्फ एनेस्थीसिया वाला है, अलग से ट्रेन किया जाता है जो सीसीयू में काम करता है, आईसीयू के अलावा सीसीयू में, जहाँ क्रिटिकल केयर यूनिट है. तो मैम हम इन बच्चों से ये एक्सपेक्ट थोड़ी करेंगे कि वेंटिलेटर में पेशेंट को संभालेंगे, और जो कि 5% से कम है. जो मेजोरिटी 95% पेशेंट होंगे जिनको बेसिक ऑक्सीजन चाहिए, नॉर्मल सलाइन चाहिए, उनको मेडिसिन चाहिए, आईवी फ्लूइड चाहिए, उनके लिए दे आर बेस्ट
आप जब आपको मैं रिसेंटली आई विल जस्ट अपडेट यू इन वेस्ट बंगाल आरएमपीज और क्वैक को दे आर हायरिंग बिकॉज देयर इज शॉर्टेज ऑफ सीवियर, बिकॉज आपको पता होगा बंगाल में लीस्ट मेडिकल कॉलेज है बिहार के बाद, जहाँ मेडिकल कॉलेज है नहीं। अब यूपी में तो प्राइवेट कॉलेजों की बाढ़ है, इवन राजस्थान में भी बाढ़ है, बट कर्नाटका में भी बहुत है, बट हर स्टेट में नहीं है। तो वहां पे उतने वर्क फोर्स है नहीं। इवन आप जैसे 7 सिस्टर सिटीज बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट, वहां और क्राइसिस है डॉक्टर्स की, बहुत सीवियर क्राइसिस है। अभी मतलब कि गवर्नमेंट की जो पोस्ट निकलती है भरने वाला कोई नहीं रहता, मतलब सीटें खाली जाती है। अब इससे चलिए प्री कोविड का मैं बता रहा हूँ। तो आज जो ये बड़ा क्राइसिस, तो मैंने उनको यही क्लियर कि ये जो बच्चे हैं आप इनसे आप वेंटिलेटर पे सीधे क्यों ले जा रहे हैं, आप इनको डायरेक्ट नॉर्मल पोस्टिंग में ला दिए। और सेम व्हाट गाइडलाइन दे हैव सेट फॉर एमबीबीएस फाइनल ईयर, अगर आपने पढ़ा है उसमें देखिए क्या लिखा क्लियर, इवन पीजी फाइनल ईयर वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, उनकी एक टीम बनाएंगे जिसके ऊपर एक नोडल ऑफिसर या समथिंग एक ऑफिसर विल बी देयर एंड ही विल गाइड कि तुम्हें क्या करना है। सेम ये भी करेंगे। तो दैट इज द थिंग। मार्क्स पे बात नहीं की जाए क्योंकि वो सोल्यूशन नहीं। ग्रेस मार्क्स देखिए वो एक अलग टॉपिक है, क्योंकि ये मुद्दा जो पहले से है ना कि जो जब नीट यूजी इज परसेंटाइल बेस्ड, नीट पीजी इज परसेंटाइल बेस्ड, देन व्हाई एफएमजी इज परसेंटेज बेस्ड। ठीक है, पहली बात तो वो तो सिस्टम ही गलत है शुरू से, जिसके लिए शायद ऑब्जेक्शन इतना कभी हुआ नहीं, और नीट उतना एग्जिस्टेंस में था नहीं 2017 से पहले। तो बच्चे इतने अवेयर भी नहीं थे पहले, सीपीएमटी और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट टाइप सब लोग अपना अपना एग्जाम कराते थे सारा। बट नाउ द नीट इन पिक्चर, अभी नेक्स्ट जो आ रहा है फिर उसमें एक अभी हालांकि वो ड्राफ्ट ऑफ शायद वापस होने वाला है लेटेस्ट अपडेट एनएमसी, बट दैट अगेन इज कंट्रोवर्शियल। वो गलत आया तो इससे ही इनका नियत समझ में आती है कि फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट वो 2 साल के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बट प्राइवेट कॉलेज में अगर आप इंडिया में 1 करोड़ देके पढ़ लेते हैं तो यू हैव नो लिमिट। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बायस ड्राफ्ट था, भले ये पास नहीं होगा और ये होगा भी नहीं। अगर ये पास भी कर दें तो फर्स्ट हियरिंग में ये नलीफाई हो जाएगा कोर्ट में, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। और एज पर रिसेंट डेवलपमेंट व्हाट वी हैव गॉट कि वो ड्राफ्ट वापस लेके चेंज कर रहा है। तो बेसिकली गवर्नमेंट आपको, क्योंकि अब मैंने यही बोला कि कोई आपसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट कभी रहता नहीं, तो आपके लिए बहुत अच्छा सोचने का कोई मतलब है नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। हाँ जी। और एक चीज और है डॉक्टर आशीष सर, कि ये जो इंटर्न्स होते हैं चाहे वो इंडिया के भी हों या कहीं के भी हों, ये काफी एनर्जाइज स्टूडेंट्स होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनके अंदर होता है अभी बहुत कुछ सीखना है। और इस मोटिवेशन को भी यूज किया जा सकता है इस टाइम में। अगर आप 20 स्टूडेंट्स के ऊपर एक एमओवी लगा दोगे तो वो भी उनको गाइड कर सकता है मॉडरेट माइल्ड केसेस को अच्छे से हैंडल करने के लिए। तो ये चीजें अगर इस टाइम यूज की जाए अच्छे से एक अच्छी लीडरशिप के साथ, तो आई थिंक पॉसिबल है, एफएमजीज को बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। और फ्रैंकली बताएं तो ये मिस जैसे एमबीबीएस में चाहे इवन इंडिया में आप देख लीजिए तो कायदे से जो एकदम खुल के बोले तो फाइनल ईयर तक बच्चे को एज अ क्लिनिकल कुछ खास आता नहीं है, वो थ्योरी थ्योरी पढ़ता रह जाता है, उतना एक्सपोजर इंडिया के बच्चों को भी रहता नहीं है। जो बच्चा सीखता है वो फ्रैंकली इंटर्नशिप में ही सीखता है, वही एक टाइम होता है जिसमें वो सीखता है, अपने सीनियर को पकड़ता है, उसके ऊपर एसआर होते हैं या मान लो कोई सीनियर है या कोई असिस्टेंट प्रोफेसर यंग एज का होता है, उसके साथ वो रह के अपनी टीम बनाता है। वो धीमे धीमे उसके जो बॉस सो कॉल्ड होते हैं, इसीलिए हमारे सीनियर्स की बड़ी रिस्पेक्ट होती है मेडिकल प्रोफेशन में कि बॉस आर ऑलवेज राइट, बिकॉज वही हमें सिखाते हैं। तो इसीलिए ये प्रोफेशन और प्रोफेशन से बहुत अलग हो जाता है कहीं ना कहीं। जैसे आप देख रहे हैं कि कोविड क्राइसिस आके पूरा वर्ल्ड के सारे आईटी से लेके दुनिया सब वर्क फ्रॉम होम हो गया। यही एक प्रोफेशन जो वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है, जिसमें आप भी फ्रंट लाइन पे जा सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। मैं एक चीज बीच में, जैसे अभी हमने बात की कि जो हमारे एफएमजीज हैं हम उनको लाइक हम बात कर रहे थे वेंटिलेटर्स के लिए वो ट्रेन नहीं है। तो अभी क्या है, हमारे जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं वो भी बिजी हैं माइल्ड केसेस मॉडरेट केसेस को ट्रीट करने में। अगर हम अपने एफएमजीज को लेके आते हैं तो एटलीस्ट हम जो अपने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं उनको एक रिलीफ दे सकते हैं। अभी जैसे हम बात करते हैं डॉक्टर से, वो भी बोलते हैं हम 18 आवर्स की ड्यूटी कर रहे हैं, 20 आवर्स की ड्यूटी कर रहे हैं। नाउ एवरीबडी हैज बीन एग्जॉस्ट कंप्लीटली। तो एक रिलीफ देने के लिए भी हम अपने एफएमजीज को लेके आ सकते हैं। अब आगे चलते हुए अगर बात करें, देखिए अभी हम स्टेट वाइज बात कर रहे हैं, कर्नाटका, केरला, गुजरात, आगे शायद यूपी गवर्नमेंट कर दे, बिहार कर दे। बट डॉक्टर आशीष, सेंट्रल लेवल पे क्या कुछ नहीं हो सकता है? देखिए सेंट्रल लेवल पे 2 चैनल से अप्रोच हो रही है। एक तो सोशल मीडिया और जो हमारे जैसे लोग जो डायरेक्ट अगर मिनिस्ट्री तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, बट करना तो उनको है अल्टीमेटली। और दूसरा डॉक्टर राजन है, उन लोग लीगल चैनल से भी इसको कर रहे हैं। आई थिंक दिस वीक ट्यूसडे या थर्सडे हियरिंग इज देयर।
और आप मान के चलिए आप इस समय कोर्ट कितना सख्त, अगर आप रोज का न्यूज पढ़ रहे हैं तो वो सेंटर को राइट लेफ्ट वो कर रहे हैं कायदे से, क्योंकि जो फेलियर्स कहीं अगर हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो उसको दुरुस्त करने के लिए कोर्ट इनिशिएटिव ले चुका है। इस समय बहुत अच्छे जजमेंट्स आ रहे हैं, आप देखिएगा तो अगर ये प्लीज हियरिंग होगी तो मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि फर्स्ट हियरिंग पे ही बच्चों को रिलीफ मिल जाएगा। तो बहुत जल्दी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जो कष्ट का समय थे वो चले गए, आप मान के चलिए। अभी जून में एफएमजी का एग्जाम है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि अभी एग्जाम पे ध्यान दें या इन चीजों पे ध्यान दें, क्योंकि जब कल रात का डिसीजन आया तो बहुत से स्टूडेंट से मेरी भी पर्सनली बात हुई। उन्होंने बोला कि मैम अभी देखिए अब 3 महीने के लिए हमें काम पे बुलाया जा रहा है विदाउट एनी श्योरिटी, तो ऐसे हम अपना एग्जाम भी मिस करेंगे और काम भी करेंगे उनके लिए। ये प्रॉब्लम देखिए सिर्फ फॉरेन ग्रेजुएट्स की नहीं, हमारे से जैसे एमबीबीएस के बच्चे जो फाइनल ईयर के टच में है उनका ऑब्जेक्शन भी यही है। वो कह रहे हैं कि हमारी एग्जाम होने थे, आप हमें ड्यूटी में लगा रहे हैं। एक दूसरा, आप सोचिए जो बच्चा नीट पीजी की तैयारी करता है वो अभी एकदम जिसने पूरे साल या 1.5 साल तैयारी की है, अब वो फाइनल जब घड़ी आती है ना, शादी का समय आ गया, हम एकदम तैयारी कर रहे थे, उस समय आप उठा के हमें कोविड ड्यूटी में डाल दिया आपने। तो हमारी प्रिपरेशन तो चली गई 3 महीने के लिए और हम डिस्टर्ब भी हो गए। और मान के चलिए कि अगर हम 100 लोग लगाए तो मान लीजिए 10 से 20% में बीमार भी पड़ जाएंगे। होता तो उसमें कुछ टैलेंटेड बच्चे होते जो बहुत अच्छा क्रैक करते। तो देखिए उन सबका नुकसान होना है, ऐसा नहीं इसमें नुकसान सिर्फ एफएमजीज का है। अगर हम लोग इन सबको ड्यूटी पे लगा रहे जो कि ऑलरेडी पीजीज लगा दिए गए हैं, मतलब नोटिफिकेशन आई गया है, और फाइनल ईयर के बच्चे भी लगाए जा रहे हैं, तो फाइनल ईयर का जो एग्जाम होना था उनकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं डीरेल हो रही है। जो बच्चे पीजी की तैयारी इतने दिन से कर रहे थे उनकी प्रिपरेशन डीरेल हो रही है, और जो पीजी फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनकी भी फाइनल ईयर का सबसे टफ एग्जाम होता है पीजी में। तो उसे पास करना सबके लिए कितने बार आप देखेंगे 4-4 5-5 साल लग जाते हैं इसको निकालने में पीजी को, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही टफ आपका होता है, क्योंकि वाइवा बेस्ड भी होता है, वो भी होता है, तो उसके टेक्निकलिटीज अलग है। बट उनका भी लॉस है, तो लॉस तो है, बट नेशन के लिए ये लोग तैयार है ना करने को। बट उनको क्या लगा कि पहले इन्होंने जो गवर्नमेंट ने बोला था कि हम 5,000 पर डे देंगे, पर मंथ देंगे, फिर शायद अभी 15,000 कर रहे हैं। उनको क्या लग रहा है इससे अच्छा तो बॉन्डेड लेबर है, जो आज अगर हम लोग को पता है एक दिन की दिहाड़ी 500 रुपए एक मजदूर लेता है, तो वो भी 15,000 महीना कमाता है। तो डॉक्टर्स की जो मगर इसीलिए शायद कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला भी कि डॉक्टर्स को दे नीड रेस्पेक्ट, और एक ऐसा अमाउंट हो कि लगे कि आप कुछ दे रहे हैं, या तो हम ना दीजिए, आप उनसे फ्री में ही काम करा दे, दे आर बेटर हैप्पी कि हाँ चलो मैं सर्व कर रहा हूँ नेशन को। बिल्कुल, बहुत से स्टूडेंट्स है डॉक्टर आशीष जो ऐसा बोलते हैं, इस टाइम पे हम सिर्फ देश की सेवा करना चाहते हैं, नेशन को हमारी जरूरत है और हम आगे आके ये काम करना चाहते हैं, चाहे इसके बदले हमें कोई इंसेंटिव्स कुछ ऐसी चीजें ना भी मिले, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। ओके, आप इसके साथ साथ एक और चीज, जैसे अभी केरला और कर्नाटका का जो डिसीजन आया है लास्ट फ्यू डेज में डॉक्टर आशीष, इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, इट हैज नॉट बीन पब्लिश्ड ऑन दी लोकल मेडिकल काउंसिल्स, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत बच्चे बता रहे हैं कि उन्होंने इतना फोन कर दिया अपने काउंसिल में कि काउंसिल वाले बहुत नाराज है, वो फोन उठाते ही डांट दे रहे हैं कि फोन मत करो, ऐसा कुछ नहीं। वो देखिए जब गवर्नमेंट, देखिए एक्चुअली ये हमारे देश का सिस्टम इतना टेक्निकल बना है, ये इतनी आसानी से क्यों नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं हो रहा ये भी मैं बता देता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे पहले एमसीआई थी एक बॉडी, अब एनएमसी है। तो कोई भी चीज गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि निकाल दी, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो जो आदेश निकालेंगे वो आदेश का नोटिफाई होता है वहां के किसी ब्यूरोक्रेट जो आईएएस या जो उसमें डेप्यूटी पे होगा, वहां से वो नोटिफाई होकर जाएगा मिनिस्ट्री हेल्थ। और क्योंकि मैं डेंटल काउंसिल मेंबर भी हूँ तो हम लोग भी बिल पास करते रहते हैं, और हम लोग भी जो 300 कॉलेज इंडिया के उनकी क्वालिटी का देखना हम लोग के जिम्मे रहता है। तो प्रोसेस सब जगह एक ही कि हम लोग मिनिस्ट्री को देते हैं, मिनिस्ट्री उसको अप्रूव करती है, फिर वो जाएगी रिकमेंड करती है एनएमसी को कि ये देखिए हमने अपने स्टेट में किया है, तो इसका एक तो वहां से एनएमसी फिर स्टेट काउंसिल जो होगी उनको इन्फॉर्म करेगी, फिर स्टेट काउंसिल इसको नोटिफाई करके, तो दिट विल टेक, इंडिया है और मान के चलिए हफ्ता 10 दिन कुछ होता नहीं, यहाँ पे लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, अभिजीत शिनॉय सर, 2 ईयर में एफएमजी का प्रिपरेशन हो सकता है क्या? आई हैव वेस्टेड 4 years बट आई वांट टू डू गुड नाउ। क्या कहना चाहते हैं अभिजीत, थोड़ा क्लियरली लिखें। साई राज, madam, must and should FMGs have to work as COVID duty in all states of India because we have to control corona? To win corona battle, NMC have to give permission to do work in all states of hospital.
बिल्कुल साईराज, हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं और हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि ये हो जाए। ओके, तमिल पुन्नू, डॉक्टर आशीष, ये क्वेश्चन आपके लिए। प्लीज, हाउ अबाउट जून एफएमजी, विल इट बी पोस्टपोन्ड और नॉट? विल दे अलॉट 2021 बैच आउट स्टूडेंट्स टू अपीयर फॉर दिस? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत बच्चे हमें भी मैसेज कर रहे हैं, तो उनको मैं ये बताता हूँ कि जवाब तो गवर्नमेंट के लिए, जवाब हम लोग के पास भी है। अगर हम लोग सिस्टम देखते हैं तो ट्विटर पे हम लोग अभी तक बहुत ट्रेंड चला रहे थे, हम लोगों ने 8 से 9 एग्जाम इधर पोस्टपोन कराए हैं सेफ्टी देखते हुए, या कैंसिल कराए, जिसमें JEE था, आपका CBSE 10th का एग्जाम है। हम लोगों ने 1 मिलियन तक ट्वीट कराए हैं। अभी हमने 12th के लिए भी लगे हुए हैं, फिलहाल उसे पोस्टपोन कराया, लेकिन वी आर ट्राइंग बेस्ट कि कैंसिल कराने का ये कि अभी पैंडेमिक में ऑलरेडी इट्स वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, और ये एग्जाम का टाइम नहीं है, जबकि सारे एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं। और अभी हमें लगता है अगर गवर्नमेंट ये डिसीजन अगर लेती है अगले 10-15 दिन में कि सबको ड्यूटीज में लगाती है, तो हमें नहीं लगता फिर एग्जाम का तो पॉसिबल नहीं है। फिर दोनों चीज एक साथ हो भी नहीं सकती। आप एक तरफ FMGs पे ड्यूटी पे लगा रहे हैं, देखिए यही कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, जैसे कर्नाटका या गुजरात, अगर आप 3 महीने की लगा रहे हैं तो फिर ये एग्जाम कब देंगे? नहीं दे सकते ना एग्जाम, तो ये एक तरह से इम्पॉसिबल है। अभी हमें नहीं लगता जून में आपका FMG लॉजिकली नहीं होना, या तो गवर्नमेंट सब आंख कान बंद कर देगी और आपको चुपचाप बोलेगी एग्जाम तो हम आपको एंटरटेन नहीं करने वाले, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो दैट इज अनदर थिंग, ऐसा होना नहीं, हमें नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर आशीष, सैयद दीबा सर, प्लीज, सब बोल रहे हैं ग्रेस मार्क, सबको मौका मिलना चाहिए काम करने का, और जिसने इंटर्नशिप कंप्लीट किया है लाइक बांग्लादेश वाले, उनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है। उनको तो बाय डिफॉल्ट वैसे मिल सकता है, हाँ एग्जाम तो उन्होंने नहीं दिया तो रजिस्ट्रेशन तो शायद तब तक नहीं मिला। परमानेंट रजिस्ट्रेशन की बात मत करिए, गवर्नमेंट कभी नहीं तैयार होगी। जो प्रोटोकॉल एग्जाम तो इवन इंडिया वालों को भी देना पड़ेगा। एग्जाम से हम लोग नहीं भाग सकते। देखिए, 2 चीज हम लोग डिमांड कर सकते हैं, या तो आप हमें कुछ ग्रेस मार्क जैसे आप बोल रहे हैं, या कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मार्क दे दीजिए, या हमें कुछ कुछ एज दे दिए एग्जाम टाइम में जो हमें हेल्प करे, हमने टाइम जो खराब किया है, क्योंकि इसमें हम जब ड्यूटी करें तो हमारी कहने की प्रिपरेशन भी तो खराब हो रही है, वो टाइम भी तो जा रहा है। अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो ये चीज है। और दूसरी चीज देखिए, जो लोग कह रहे हैं पेपर टफ सेट करते हैं, पेपर कभी, मैं बता दूं, ठीक है, अपनी अपनी थ्योरी होगी। मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट जानती थी कि जो जितने बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं सब पढ़ने में फिट नहीं है। इस फिल्टर को इन्होंने जो लगाया है, ये फिल्टर इसीलिए लगा दिया कि 2018 से नीट क्वालिफाई कर दिया। आप ऑटोमेटिकली देखिए 50% बच्चे ऐसे थे जो क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाते थे, और ये बाहर भी नहीं जा रहे हैं। तो एक फिल्टर वहां लगा दिया, एक फिल्टर यहाँ नेक्स्ट लाके लगा दिया। अब क्या है कि एक देश एक एग्जाम, जो पढ़ेगा वही टिकेगा। तो इवन इंडिया में भी प्राइवेट कॉलेज में से बहुत जगह है, मतलब खुल के नाम लेना ठीक नहीं, बट मैं भी एक कई कॉलेज में पढ़ाया हूँ, और हमने खुद देखा कि जहाँ प्राइवेट मैनेजमेंट, आप देखिए साउथ तो हम लोग फिर भी थोड़ा बेटर कह सकते हैं, बट नॉर्थ में एक कल्चर है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ज्यादातर जो मेडिकल कॉलेजेस आप देखेंगे तो या तो किसी पॉलिटिशियंस के होंगे या किसी रियल एस्टेट के बिल्डर, मतलब दे आर नॉट देयर टू गिव एजुकेशन, दे आर देयर टू अर्न मनी बेसिकली। उस स्कूल और थॉट में आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन उस प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी, तो ज्यादातर कॉलेज का हाल वही है कि आप 2 बजे के बाद इन कॉलेजेस में चले जाइए नॉर्थ में, और OPD में शायद आपको मतलब कोई पंछी भी बैठा नहीं मिलेगा, पेशेंट तो छोड़ दीजिए। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि क्वालिटी यहाँ भी, तो जब इस तरह का एग्जाम होगा, जब सबको एक ही एग्जाम देना है, तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी अपने आप ही हो जाएगा। फिर कैसा डरना है? जो पढ़ेगा उसको तो डरना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कहीं से पढ़े। बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, जैसे अभी आपने वन नेशन वन एग्जाम की बात की, अभी कुछ दिन पहले NMC ऐसे माहौल में जब ऑलरेडी कोविड का इतना क्राइसिस है, हर इंसान परेशान है, ऐसे में NMC अपनी वेबसाइट पे एक ड्राफ्ट पब्लिश करती है जिसमें एक और फिल्टर की बात की जाती है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को एक एडिशनल एग्जाम देना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप 1 पे, दो ड्राफ्ट, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो पॉसिबल नहीं। देखिए, अगर हम लोग 8 अगस्त को जो भी बिल आया था, प्रेस नोट हर्षवर्धन जी का 2019 का, वो पूरा पढ़िएगा। वो मैंने उसको कोट भी किया है कई जगह, उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है, और 2 लाइन लिखी है जो बहुत ही, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि हाथ से लिखा है, ये लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ बिल है जो प्रेस नोट को गया इसकी डिटेल। उसमें क्लियर कट लिखा है कि 1 नेशन 1 एग्जाम, और देयर इज नो लिमिट फॉर एग्जाम। 2 चीज क्लियर कट लिखी है। इसके लिए एक बिल जो कानून बना है देश का, और एक जो ड्राफ्ट एक NMC छोटी बॉडी उसके सामने नहीं कह सकते हैं। हमें नहीं लगता वो उसको बाईपास कर सकते। वो करती भी है तो डेफिनेटली ये कोर्ट में लीगली नहीं स्टैंड कर ही नहीं सकता ये।
बिल्कुल बिल्कुल। आ, इसी के साथ साथ हमारे पास ऑडियंस में कुछ क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं। उनसे पहले हमारे एक ऑडियंस में व्यूअर है BM वासिम, बेटर टू स्टडी हार्ड, नथिंग वुड हैपन, वी FMGs आर थर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप लोग ऐसा नहीं सोचिए। देखिए, कुछ बहुत जल्द होगा आप लोगों के लिए, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद रखिए। अ, साथ ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया, एक सेकेंड। डॉक्टर मुजम्मिल कुरैशी सर, उस जो अभी हमने NMC ड्राफ्ट की बात की, आई थिंक ये आप ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, बट स्पेसिफिकली आपसे पूछा इन्होंने। डॉक्टर आशीष सर, NMC ड्राफ्ट में जो हम FMGs के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता देख रहे हैं, क्या वो ड्राफ्ट कैंसिल होगा? इज इट पॉसिबल? 100% होगा। और डिस्क्रिमिनेशन आज से आपके साथ नहीं हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन तो शुरू से रहा है। कभी हम लोग कहते हैं कि आज कोई नई चीज होगी तो इसमें आश्चर्य करने वाली बात नहीं, एक। और दूसरी चीज जो कह रहे हैं कि आपको पता है, मैं बहुत ऐसे फॉरेन ग्रेजुएट्स को जानता हूँ जो इस समय बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट में इंडिया में बैठे हैं, बहुत जबरदस्त। और इवन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो US सेटल हो गए, USMLE वगैरह निकाल के, और दे आर डूइंग वंडर्स। एंड इवन मेरे घर के रिलेशन में ही बहुत लोग रशिया से इनफैक्ट पढ़े थे उस जमाने में जब लोग बहुत कम बाहर जाते थे, और आज उनका नाम है मार्केट में। आप में नाम कभी ऐसा होगा तो जरूर उनको हम लाएंगे आपके साथ लाइव, आप उनसे पूछिएगा। एंड दे आर डूइंग वंडर्स। तो ऐसा कुछ नहीं, कहीं से पढ़िए, अंडर ग्रेड्स मैंने बोला, पढ़ाई आपको बस पढ़ना है, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। ये बात सच है कि क्योंकि जमाना आ गया सुपर स्पेशलाइजेशन का, तो MBBS एक आप कह सकते हैं छोटी डिग्री है। आपको कोई मार्केट में इतनी जगह बेसिक रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो CSC PSC में जॉब कर लिया, आपका काम चल जाएगा। बट अगर आप जिस जिस एम से इस प्रोफेशन में आए थे, तो सर वो थोड़ा सा वो जो ग्लैमर था कि हम डॉक्टर हैं और क्लिनिक के बाहर भीड़ लगे, तो सुपर स्पेशलाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो बिना उसको उसमें ही आदमी परफेक्ट होता है, जो भी चीजें खराब होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो उसमें इतनी चिंता करने की बात नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब में आपको बहुत परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, ये आपको ही पता है। डॉक्टर आशीष, आप क्या फील करते हैं, किस टाइप के इंसेंटिव्स FMGs को दे सकती है सरकार? ठीक है, FMGs को अगर आप अगर इक्वालिटी पे आप आ रहे हैं, तो जो आप इंडियन ग्रेजुएट्स को दें, अगर सैलरी वाइज वो है, आप इनको दिए ना, आप डबल करिए ना ट्रिपल ना कम। वो तो एक होना चाहिए जो भी फाइनेंशियल ग्राउंड पे आते हैं। एंड अदरवाइज इक्वालिटी हर मोड में होना, फाइनेंशियल भी होना चाहिए, और इवन आपको हर जगह इक्वालिटी होनी चाहिए। जब आप फाइनल ईयर जैसा डॉक्टर देवेंद्र बोल रहे हैं आप कर रहे हैं, तो सिमिलरली इनको भी डिपोर्ट मतलब इस समय तो डिप्लॉय करने का समय आ गया। और अभी वेट किस चीज का, क्योंकि अभी तो ये पीक है। और अभी तो आप अगर देखिए तो जैसे इलेक्शन का अभी पोस्ट रिजल्ट आपको दिखना शुरू ही हो गया है, ये और राइज करेगा। और जो ऑफिशियल फिगर है वो 4 लाख के आसपास है, अनऑफिशियल हम आप सब जानते हैं कि 12-15 लाख के आसपास होंगे। कोई वंडर्स नहीं अगर हो रहे होंगे पर डे केसेस। तो आपके जानने में ऑलमोस्ट अगर 10 अपने मोबाइल फोन लीजिए, आप 10 लोग जानने वाले कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो आपके जानने में 8 लोग या तो इन्फेक्ट हो चुके हैं या हो रहे होंगे, आपको पता ही होगा। तो इससे हम लोग ये एक अंदाजा लगाते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज ऑलरेडी एक्सपोज और गोइंग टू एक्सपोज, जिसको हम लोग नहीं रोक सकते। बिल्कुल। साथ ही में हमारी ऑडियंस में है मुस्तैक अहमद, वो लिख रहे हैं, इंसेंटिव्स आर सेकेंडरी मैटर इन दिस सिचुएशन। बिल्कुल, देखिए, ये अपना अपना व्यू पॉइंट है, ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल सिचुएशन पे। इस समय जैसा सरकार चाहेगी FMGs के लिए जो भी ऐलान करना, स्टूडेंट्स रेडी हैं, बट इट विल डिपेंड उनकी अपनी प्रेफरेंस पे। लाइक अभी जो गुजरात में डिसीजन आया कि 3 महीने आप काम कर सकते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो देश सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसा सोच रहे हैं कि बस 15,000 में क्या होता है, ये तो आजकल एक लेबर को भी मिल जाता है, या फिर 3 महीने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, तो हम ये काम क्यों करें? तो ये देखिए, ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है, और हो सकता है हर स्टेट अपना एक अलग रूल लेकर आए इसमें, ऐसा भी हो सकता है। हर स्टेट रूल अलग लाएगा डेफिनेटली। जब कोई स्टेट होता है, जैसे मान ली कोई चीज नई आ गई कर्नाटका में और गुजरात, एक चीज आप देखिएगा ये दोनों बीजेपी रूल स्टेट है। तो डेफिनेटली अगर यूपी थर्ड स्टेट होने जा रहा है, अगर जो इसको इनिशिएटिव लेता है, तो डेफिनेटली वो अपने सबॉर्डिनेट आपके लिए उनके जो है उनसे वो डेफिनेटली लेंगे कि आपने अपने यहाँ कैसे किया, जरा हमें भी उसका पूरा भेजिए डिटेल, फिर वो लागू करें। हो सकता है थोड़ा बहुत मॉडिफाई करें जो आप कह रही, बट देखना ये होगा जैसे नॉन बीजेपी रूल स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र है और भी जो स्टेट है जहाँ बीजेपी नहीं है, केरला है, इवन वेस्ट बंगाल, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो कब रिएक्ट करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। इसी से पूरे देश का एक चीजें, इसीलिए प्रॉब्लम और कंफ्यूज हो जाएगी ये चीज। इसलिए बेटर है कि अगर सेंटर खुद डिसीजन ले ले,
तो प्रॉब्लम सॉल्व है। सेंटर ले लेंगे तो किसी स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल इशू तो है नहीं कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या अन्य हो जाए, इसमें तो सब एक ही रहेंगे, सबको हेल्थ की चिंता है, सबको ट्रीटमेंट चाहिए। तो अगर सेंटर इनिशिएटिव लेती है तो दैट विल बी बेस्ट है। कृष्ण हरियाणवी मैम, बात मनी की नहीं है। देखिए कृष्ण, हम भी यही कह रहे हैं, बात पैसे की नहीं है, बात रजिस्ट्रेशन की है। जो भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, हम इस प्लेटफॉर्म पे हम और ऑल्टरनेटिव्स भी डिस्कस करते हैं डेली, नए एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, जो भी सजेशंस आती हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा वो हम आगे रखते हैं। अब किस टाइप का जो इंसेंटिव है, इंसेंटिव कैन नॉट बी ओनली मॉनिटरी, इंसेंटिव कैन बी इन टर्म्स ऑफ ग्रेस मार्क्स, इंसेंटिव कैन बी इन टर्म ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन। तो ये डिपेंड करेगा एंटायरली स्टेट टू स्टेट। वरुण कुमार मैम, व्हाट अबाउट दिसंबर 2020, 4-5 रॉन्ग क्वेश्चंस इन एफएमजी, प्लीज रिस्पॉन्ड, आई शुड गेट बैक टू माय स्टडीज। देखिए इस पे ऑलरेडी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, काफी स्टेट्स में जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने केस फाइल किए हुए हैं, एंड वी आर होपफुल कि इसमें आपके फेवर में ही डिसीजन आएगा। राइट डॉक्टर आशीष? इसमें आई थिंक जो मुझे लेटेस्ट पता है, 1 नंबर वालों पे तो शायद रिलीफ मिला है, जो 1 नंबर से शायद एक क्वेश्चन के, और 5 नंबर के कुछ उसमें 5 क्वेश्चन का तो था, वो अभी मैटर चल रहा है, इसी बेसिस पे शायद बहुत जल्दी उनको भी रिलीफ मिल जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। कुछ चीजें नेगेटिविटी तो है, बहुत चीजें हैं, बच्चे का जो मैसेजेस लिख रहे हैं आप जैसे बता रहे हैं, वो उतने होपफुल है नहीं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में ऐसा कुछ बहुत खास देखा नहीं अपने फेवर में, तो वो डेफिनेटली उनका स्टेट ऑफ माइंड सही है। बट अगर हम लोग हमेशा ही सोचेंगे कि कुछ हो ही नहीं सकता, तो हम लोग शांत होकर बैठ जाएंगे, कभी कुछ होगा भी नहीं। तो अपने हक के लिए अगर नहीं लड़ेंगे, नहीं आवाज उठाएंगे, तो पॉसिबल तो हो है नहीं कि खुद से कोई कुछ करने वाला है। अली आशीष सर लिख रहे हैं, एमसीआई सेज दैट द क्वालिटी ऑफ एफएमजी और मेडिकल इंस्टीट्यूट अब्रॉड इज नॉट गुड, then why MCI or NMC does not take an initiative to seek into the quality of medical education prior to giving them registration? नहीं, मैं इसमें बताइए, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बहुत अच्छा सवाल उठाया। देखिए मैं इसमें क्लियर करूँ मुझे, एक तो दूसरी कंट्री में यहाँ की काउंसिल इंटरफेयर नहीं कर सकती, दैट इज इम्पॉसिबल। दूसरी चीज, एक था जो उन्होंने अप्रूवल लिस्ट डाली थी, वो बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है, आप कोई भी फालतू का कॉलेज ले आइए जो शायद 2 कमरे का होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, बट किर्गिस्तान बाकी जगह कुछ ऐसे कॉलेज है, रशिया में तो नहीं, कोई रूल बहुत सख्त है, बट कुछ कंट्रीज में है। वहाँ पे क्या होता है कि एम्बेसी से एक लेटर जाएगा यहाँ के एम्बेसी को, और कोई भी 500 बेडेड एफिलेटेड हॉस्पिटल रेड क्रॉस सोसाइटी से है, WHO फिर हो ही जाता है। वो यहाँ पे जब एम्बेसी रिकमेंडेशन देती थी तो एमसीआई उसको अपने लिस्ट में डाल देती थी। वो हो सकता कॉलेज वैसे भी थे जो 2 कमरे के थे, एमसीआई कभी देखने नहीं गई उन कॉलेज को कि वो कॉलेज है भी कि नहीं है, कोई जानता नहीं, वो आप ही देखने जाते हैं, जब जाते हैं फिर आपको लगता है हम फंस गए। तो इसीलिए अब देखिए एनएमसी ने एक चीज अपडेट की, आपको मैं बता दूं, पूरी लिस्ट ही हटा दी गई है, दिस नो लिस्ट, बिकॉज अप्रूव मतलब क्या, लोग सोचते थे कि ये एमसीआई ने अप्रूव किया है, मतलब ये बहुत बेहतरीन अच्छा कॉलेज में जहाँ जा रहा हूँ, बट इसी चक्कर में बहुत बच्चों का कैरियर बर्बाद हुआ है, और इसमें बहुत लोगों ने गलत यूज किया बच्चों का, और सिर्फ बिजनेस किया है। तो अब गवर्नमेंट ने ये अब जागे हैं, जब 20 साल से ये 30 साल का नुकसान हो चुका है, तो डेफिनेटली ठीक है, जाग गए, तो देयर इज नो लिस्ट। एंड मैं क्लियर कर दूं, कोई एमसीआई अप्रूव नहीं करती है, कभी उनकी टीम नहीं गई, जो आप सोचते हैं कि इंडिया में टीम आती है एमसीआई अप्रूव करती है हर साल, पहले अप्रूव करती है फिर रिकॉग्नाइज करती है। बाहरी देश में उनको कोई हक नहीं, इवन वो नेपाल का बॉर्डर भी नहीं क्रॉस कर सकते अप्रूव करने के लिए, उन्हें उनके देश को करना है। बिल्कुल। एक्चुअली मुझे लगता है डॉक्टर आशीष, इसमें जो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं शायद उनका कहीं ना कहीं ये भी कंसर्न है कि एमसीआई ने या एनएमसी ने अभी शायद रिसेंटली ही लिस्ट रिमूव किया है अपनी वेबसाइट, उससे पहले उनकी वेबसाइट पे एक लिस्ट होता था जिस जी डेफिनेटली। हाँ, वो लिस्ट इसीलिए थी, मैं बता दूं कि वो ये जो भी रिकमेंड करा के, देखिए ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, छुपा तो नहीं है, तो इसमें क्या होता था, जो पावरफुल लोग होते थे वहाँ लिस्ट, वहाँ अपने एम्बेसी से रिकमेंड करा के दे देते थे। एमसीआई की इतनी पावर है, एमसीआई एक रिकमेंडरी बॉडी थी, पार्लियामेंट्री बॉडी, जैसे हम लोग डीसीआई है, तो हमें अगर कोई नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी तो हमारी इतनी हिम्मत तो है नहीं कि हम उस पर ओवर रूल करके हम कर दे, तो वो तो हमें करना ही है, तो वो लिस्ट में डाल देते थे, कोई सिंपल प्रोसीजर था। हाँ, उसका मैसेज बहुत गलत जाता था, तो लोग सोचते थे कि ये लिस्ट में पड़ा है मतलब ये एकदम परफेक्ट कॉलेज होगा, और बच्चे बेचारे चले जाते, तो बच्चे भी अवेयर हो इंटरनेट के, तो गूगल पे व्लॉग्स पढ़ लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं कैसे कॉलेज है, तभी सेलेक्ट करते हैं, तो सभी ठीक हो गए, बच्चे भी माइंडसेट ठीक हो गया, क्वालिटी भी अच्छी जा रही है, और यहाँ भी चेंजेस हो रहे हैं इंडिया में धीरे धीरे, तो सब अच्छा ही होगा फ्यूचर में, जो हो गया पास था।
बिल्कुल। आप सुरेंद्र सिंह ये लिखते हैं, एग्जाम कंडक्ट करना रिस्की है जून का, तो दिसंबर 2020 के बेस पे एफएमजी स्टूडेंट्स को लिया जा सकता है। तो वही हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं अभी उनको हम ले सकते हैं कुछ ग्रेस मार्क्स देके, या कुछ जो परसेंटेज है उसे कम कट डाउन करके, लाइक बात हो रही थी पीछे 30% पे जाने की। ये ऑलरेडी लास्ट ईयर से इस पर डिस्कशन चल रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो जो 90 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं 90 तक के, दे विल आल्सो बी अलाउड। तो वही बात ऑलरेडी चल रही है, बट विदाउट एग्जाम देखिए ये मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि कोई फिल्टर होना जरूरी है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। ये तो बिना एग्जाम तो नहीं होगा, आप एकदम क्लियर कट रख लीजिए। इसमें बस एकदम मैं कुछ ग्रेस दे दें, या आपका एक चीज ये कर सकते हैं कि ये जो टाइम आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं इसको एज ए इंटर्नशिप काउंट हो जाए और आपको एग्जाम देना पड़े। लेकिन उसमें फिर कॉन्ट्राडिक्ट होंगे कहाँ के बच्चे जो बांग्लादेश या नेपाल से आए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटर्नशिप करके आते हैं, वो उनको शायद इशू होगा। तो देखते हैं गवर्नमेंट इसको कैसे करती है, बट एग्जाम को बाईपास कर देना तो इम्पॉसिबल है। मतलब मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट ऐसा कोई डिसीजन लेने वाली है। जब वो ड्यूटी लगाने में 3 महीना लगा रहे हैं, 2 महीने से सोच रहे हैं सिर्फ, आपका डिसीजन ले लेते तो कहाँ वो आपको रिलीव करने वाले थे आसानी से छोड़ दे। बिल्कुल। डॉक्टर देवेंद्र, एक बात आपके लिए, हमारे ऑडियंस में डॉक्टर राजेश चौधरी लिखते हैं, एफएमजीज की क्वालिटी पर डाउट है बट वैक्सीन हम रशिया से ले रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? हिपोक्रेसी है लोगों की, कुछ लोगों की, अब क्या ही बोले इस बारे में। देखिए, जो एफएमजीज ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं सारे एफएमजी का एग्जाम क्लियर करके ही आए हैं, तो अगर क्वालिटी पे डाउट है तो फिर उनको हर चीज पे ही डाउट होना चाहिए। हर इंडिया में जितने एग्जाम्स होते हैं एनबीए लेता है उन सब पे डाउट होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम तो वही सेट करते हैं ना। तो ऐसे लोग थोड़े सिनिकल होते हैं, उनको हर चीज पे डाउट करने की आदत होती है, तो कुछ ऐसे लोगों को तो कुछ कहना भी नहीं चाहिए। आप देख लीजिए, चाहे मास्क हो, इवन जो वैक्सीन का रॉ मटेरियल है, अब मास्क तो इंडिया में अब जाके बननी शुरू हुई, नहीं तो प्री कोविड तो हमारे यहाँ मास्क पीपी की जैसी कोई चीज बनती नहीं थी। एवरीथिंग वी वर डिपेंडेंट ऑन चाइना। आज भी देखिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, फुल्ली वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। इवन जो इंडिया में एक दो कंपनी है आईवॉक्स वगैरह, ये जो कंसंट्रेटर बनाती है, लेकिन इनकी जो आत्मा मेम्ब्रेन वगैरह वो आज भी चाइना से आती है। तो वी आर अगेन डिपेंडेंट ऑन चाइना और रशिया। आपको देखिए हर चीज में, तो इस चीज को कह देना कि वहां पे सब चीज बेकार है, आपके देश में परफेक्ट है, तो फिर आप सारा 80% डिफेंस का आप सामान रशिया से खरीदते हैं इतने साल से, 50-60 साल से आप बंद कर दिए, आप खुद बना लिए। तो आपको पता है जब डीआरडीओ नहीं बना सकता तभी वो वहां से लेते हैं। तो चाहे अगर इस चीज को कहना कि फॉरेन में और बाकी चीज में तो आप फॉरेन को बहुत कॉपी करते हैं और यहाँ पे आप आ जाते हैं एक ही बाहर का बच्चा पढ़ा हो परफेक्ट, ये गलत है एक्चुअली। ये डेफिनेटली कि कुछ कॉलेज जरूर फॉरेन में ऐसे हैं जो बहुत अंडर क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, डेफिनेटली मैं उस चीज को एग्री कर सकता हूँ। उस चीज को बोलना आंख बंद करके कि सारे कॉलेजेस अच्छे थे, सारे बच्चे बढ़िया थे, ये गलत है। बट बहुत ज्यादातर कॉलेज जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और बच्चे काफी अच्छी पढ़ाई करके आते हैं बाहर से, ऐसा गलत है। अगर कोई ऐसा नहीं, मतलब आज केरला में किसी ने बोला है शायद और बहुत गलत बोला है, उसके लिए ट्विटर पे और सोशल मीडिया में काफी अपोज भी हो रहा है, तो ठीक है। एक व्यू पॉइंट है, नेगेटिव थॉट रहता है फॉरेन मेडिकल को लेके। आप चलिए एक हो किसी को, मान लीजिए यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो सोचता मैं 1 करोड़ देके पढ़ा हूँ, ये 20 लाख में कैसे पढ़ाया। तो कहीं ना कहीं देखिए एक रहता है ना थोड़ा बहुत, तो हो सकता है डिफरेंस ऑफ थॉट रह सकता है। बिल्कुल। इसी में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी डॉक्टर आशीष, आज हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे एफएमजीज के लिए कि अगर इतना ही था तो नीट क्वालिफाई कर लेते। चलिए मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर नीट क्वालिफाई कर भी लेते तो क्या सीट मिल जाती? इंडिया में 7 लाख 7.5 लाख स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई करते हैं। देखिए पेरेंट बहुत स्मार्ट हो गया, आपको बताएं, ठीक है। पहले लोग फॉरेन जाते थे जो भी बात, आज आप देखिए बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आ जाइए, 45,000 नीट में एग्जैक्ट बच्चे बैठेंगे, करीब करीब 18 लाख, लास्ट ईयर 16 लाख बच्चे बैठे थे। 18 लाख बच्चे में से अगर हम लोग परसेंटाइल बेसिस पे जाते हैं, 7-8 लाख बच्चा, 9 लाख बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा। फिर 45,000 ने गवर्नमेंट सीट दे दी, बची 35,000 सीटें जो करोड़ में है। सबकी हैसियत है नहीं, हर के घर में इतना पैसा नहीं है। चलिए हम कहते हैं सबके पास पैसा आ भी गया, सब अमीर हो गए, 35,000 सीट सबने ले ली टॉप रैंकर्स ने। अब बच्चा हमारे पास कितना, 75,000 के बाद जो बचे कुछ वो डेंटल में चले गए और थोड़े बहुत आयुर्वेद में चले गए। सारे बच्चों को हम कंज्यूम कर लेते हैं और मैक्सिमम फिगर पे जाते हैं 2 लाख।
2 लाख बच्चे कंज्यूम करने के बाद बचे वो 6 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? ये सरकार बता दे, फॉरेन जाना बंद कर दे, पासपोर्ट सबके कैंसिल कर दे, तो दैट इज समथिंग इम्पॉसिबल। तो बाहर तो जाना है। अब एक दूसरा ये, अब पेरेंट बहुत स्मार्ट है, पेरेंट ये देख रहा है कि जब एक देश एक एग्जाम का रूल आ ही गया है, इसका एक सबसे लाइव एग्जाम्पल इस साल आप देखिए, जब गवर्नमेंट ने परसेंटाइल कम की प्राइवेट कॉलेज के लिए 35% के आसपास की है इस साल, जो डेंटल और आयुर्वेद की सीट खाली जा रही थी, वो परसेंटाइल कम करने के बावजूद मैक्सिमम कॉलेज की 50% सीटें खाली चली गई। क्यों? क्योंकि बच्चा देख रहा है कि हम बीजीएस या आयुर्वेद कर रहे हैं 20 लाख के समथम बजट में, इतने के आसपास हमारा बाहर से पढ़ाई हो जाएगी, तो क्यों ना बाहर ही चलते हैं, एमबीबीएस करते हैं। इसकी वजह से तो कहीं ना कहीं देखिए वेस्टर्न इंटरेस्ट तो है ही, बाहर जा रहे हैं बच्चे तो नुकसान, बहुत लोगों की दुकानें यहाँ खराब हो रही, तो डेफिनेटली वो इतनी आसानी से चीजें नहीं होने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद सर, नेक्स्ट एग्जाम विल बी परसेंटेज बेस्ड और परसेंटाइल बेस्ड? देखिए नेक्स्ट एग्जाम का ड्राफ्ट आया था, अभी इसका एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बता दूं, डरिएगा नहीं। जैसा भी आप एक दिन एग्जाम देते थे, ये 3 दिन का एग्जाम होगा, 4.5 घंटे का पेपर होगा, डे 1 डे 2 डे 3, 1 घंटे का बीच में ब्रेक होगा। इसमें जो नेक्स्ट एग्जाम का पेपर डिजाइन हो रहा है, वो बेसिकली डिजाइन हो रहा है फाइनल ईयर स्टूडेंट जो यहाँ से इंडिया से एमबीबीएस करते हैं, और जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है उस पर ही फोकस है। अभी तक जो पेपर आता था उसमें नॉन क्लिनिकल आपको अच्छे पढ़ना होता था पेपर निकालने के लिए, बट अभी एकदम पाशा उल्टा हो गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में ही ज्यादा फोकस करना होगा। उसके हिसाब से सिर्फ 5% मैक्सिमम, आप मान लीजिए 8% क्वेश्चन नॉन क्लिनिकल से होंगे, यानी फर्स्ट सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं आपके, वो अब आपके लिए उतने यूजफुल नहीं है, और आपको अब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में ज्यादा ध्यान देना होगा एक बार। और उन्होंने उसमें किया किया कि ये नेक्स्ट वन आई थिंक परसेंटेज बेसिस होगा, जिसमें परसेंटेज कम रखे हैं, वो जो इतना अभी तक पता चला है 37% रखेंगे, 50 नहीं रखेंगे। एक जो नेक्स्ट टू होगा वो परसेंटाइल बेसिस होगा, वो वाइवा या प्रैक्टिकल बेस होगा, लेकिन जिससे तो क्या आपका दोनों का एग्रीगेट निकाल के ही पीजी सीट आपको अलॉट की जाएगी। ये पीजी सीट का भी ये कॉमन एग्जाम होगा। तो बेसिकली इन्होंने नाम बदल दिया, नीट पीजी को नेक्स्ट टू आप समझ लीजिए, और नीट, ये जो नीट आप एग्जाम देते थे एफएमजी आपके लिए, वो आपका नेक्स्ट वन हो गया। बिल्कुल। Tarun Rajput, sir, Dr. Devi Shetty is a prominent face of India. He has given some best thoughts on FMGs. How hard it is to work on those. I can't understand thing. देखिए तरुण, डॉक्टर देवी शेट्टी ने एक आर्टिकल में टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने मेंशन किया कि हम बेड्स ले सकते हैं बाहर से, हम ऑक्सीजन बाहर से ले सकते हैं, बट मैन पावर क्राइसिस का क्या? इस समय हमारी गवर्नमेंट को मैन पावर क्राइसिस पे ध्यान देने की जरूरत है। और उन्होंने एक ऑल्टरनेट अपने आर्टिकल में दिया था कि हम अपने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को, नर्सिंग स्टूडेंट्स को, बीएससी नर्सिंग वालों को प्लस एफएमजीज को इंक्लूड कर सकते हैं। उनका ये आर्टिकल आने के बाद ही ये डिसीजन आया जो हमारे फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स थे उन पे। तो देखिए उम्मीद है शायद एफएमजीज के लिए भी कुछ डिसीजन आएगा, दो इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, डॉक्टर देवी शेट्टी जिस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, वहां से डॉक्टर एलेक्स और डॉक्टर ज्ञानी, इन्होंने भी अपने एंड से एक रिकमेंडेशन लेटर ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को भेजा है, जिसमें इन्होंने बात की है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी एक मौका दिया जा सकता है इस समय, दो उसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड किए जा सकते हैं कि उनको कैसे चूज किया जाएगा, ऑन व्हाट पैरामीटर्स। डॉक्टर आशीष कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे? नहीं, डेफिनेटली जो हमारे जो थिंक टैंकर्स हैं, जो बड़े सीनियर लोग हैं, वो भी इस चीज को समझ रहे हैं। और एक चीज आप समझिएगा, ये जो हमारे पास मैन पावर करंट है, केसेस बढ़ रहे हैं और लोग हेल्थ वर्कर्स भी बीमार पड़ रहे हैं, चाहे वो नर्सेज हो चाहे वो डॉक्टर्स हैं। तो जैसे जैसे आप टाइम बीत रहा है, ये भी बीमार होंगे, ये भी आइसोलेशन में है, ये भी कोई पॉजिटिव हो ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि ये नहीं हो रहे हैं, ये भी तो इंसान है। तो क्राइसिस तो बढ़ने वाली है, क्राइसिस तो कम होने का कोई चांस नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहे हंसते हुए चाहे रोते हुए, उनको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा फेवर में। बिल्कुल। Abdul Hafiz, I am ready to work for nation for 1 year or till the end of COVID without money. Instead of that, government should give us registration. तो अब्दुल, आपकी ये सजेशन हम जरूर आगे पहुंचाएंगे कि आप जैसे भी स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ देश की सेवा करना चाहते हैं एक रजिस्ट्रेशन के बदले, और आपको पैसे में कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, कार्तिकेय चौधरी मैम, कब तक एक्सपेक्ट है कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेगी?
गवर्नमेंट इतनी जिद्दी है कि इतनी आसानी डिसीजन लेती नहीं है। लेती होती तब ले लेती, लेकिन हम लोग कराएंगे, आप हम लोग साथ दीजिए। ट्विटर पे हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं, आपको देखिए, आपसे सिंसियर, आप लोग से छोटे बच्चे, मैं कह रहा हूँ, मैंने ये भी बोला था आपको, शायद कुछ बच्चों को बुरा लगे, आपसे छोटे बच्चे, हम लोग एक हैशटैग डिसाइड करते हैं ट्विटर पर, इतना जबरदस्त ट्रेंड करता है कि समझे मिलियन ट्वीट्स हो जा रहे हैं, और गवर्नमेंट मजबूत है, सारे डिसीजन ले रही है। आपके यहाँ से तो बहुत ही कम बच्चे एक्टिवली ले रहे थे, हम लोगों ने जब शुरू किया अभी ट्विटर पे, अब तो फिर भी बहुत बच्चे हैं। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि एक हैशटैग डिसाइड करिए जो हम लोग ट्विटर ट्रेंड करते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग अगर गवर्नमेंट को फोर्स करेंगे तो देखिए, ट्विटर एक ऐसा माध्यम, मैं बताता हूँ छोटा सा। देखिए आप YouTube देखेंगे, YouTube में क्या है, अगर आप टाइप करिए हाउ टू बॉयल वाटर तो 7 लाख व्यूज है। मतलब हमारे इतने खाली लोग हैं जो ये भी देखते हैं कि पानी कैसे उबाले। मतलब मेरा कहने का मतलब कि YouTube में आप कुछ भी डालेंगे लोग देख लेते हैं। आप इंस्टाग्राम में भी कुछ अच्छी अच्छी फोटो खिड़की की डालेंगे, बारिश होते डालेंगे तो व्यूअर्स और लाइक्स मिलेंगे। बट ट्विटर पे जो क्राउड है वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे लोग हैं। गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियसली लेती है ट्विटर को, और इवन मीडिया मीडिया हो जो सबसे बड़ा हमारा फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। तो ट्विटर पे अगर आप ट्रेंड करते हैं कोई चीज तो सीधे सारे मीडिया का ध्यान जाएगा, सारे चैनल इसमें बात करना शुरू कर देंगे, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और उसके बाद गवर्नमेंट को भी आप टैग करते हैं, डायरेक्ट मिनिस्ट्री भी रोज देखती है क्या रोज ये लोग हमें टैग कर दे रहे हैं, तो डेफिनेटली दे हैव टू टेक एक्शन। तो ट्विटर पे आप लोग को स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो हम लोग जो सबसे ज्यादा अपने सारे भी एक्टिव जो भी करते हैं हम लोग, आप देखिए हम बहुत एक्टिव है, मतलब हम लोग के लैब्स अच्छे जाते हैं, ट्रेंड करते हैं, ट्रेंड्स जो भी हम लोग करते हैं। तो आप लोग को हमारा साथ देना पड़ेगा अपने काम कराने के लिए। बिल्कुल। Ajay Singh, sir, I heard somewhere there will one extra exam along with next one for FMGs for registration certificate. Ajay, ये अभी draft है, it has not been finalized, तो मत जाइए इस पे अभी आप। Shubh Life, does FMG student will get chance before June exam? ये तो ऊपर वाला जानता होगा। इसका जवाब देना थोड़ा, लेकिन हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, मैं ये आपको बिल्कुल। श्योर कर सकता हूँ, क्योंकि जो डेवलपमेंट 3-4 तरफ से हो रहे हैं, जो मैंने शुरुआत की है जब ये सेशन शुरू हुआ है, तो आप तीनों चारों को एक साथ करिए तो आपके फेवर में चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। देखिए बहुत से क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे से पूछ रहे हैं जनरल नीट एग्जाम के बारे में, कॉलेज चेंज के बारे में। देखिए आप निराश मत होइएगा अगर मैं आपके क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ, उनको हम एक अलग सेशन में कवर अप करेंगे। कॉलेज चेंज वाले मैं जब ब्रीफ करता हूँ बहुत बच्चे पूछते रहते हैं, कॉलेज चेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रांसफर ले सकते हैं। ट्रांसफर के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लीजिएगा, और आई थिंक बैटरी रशिया गई। की एम्बेसी की वेबसाइट में भी वो अपडेटेड है कि उसके बेसिस में ट्रांसफर इज अलाउड। ट्रांसफर में कोई आपका वो नहीं है, कोई अगर आपको कंफ्यूज करता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि कुछ बच्चे कोरा वगैरह में पढ़ते हैं। कोरा में देखिए आप ही जैसे 4 लोग लिखते हैं अपना डिसीजन, मतलब अपना व्यू, तो कुछ भी उल्टा सीधा लिख देंगे, आप उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप अगर लीगली चाहिए तो ड्राफ्ट पढ़े हैं, हमें ट्वीट कर देंगे, हम आपको भेज देंगे। उसमें एक बिल सुप्रीम कोर्ट का है, मैं भेज दूंगा, पढ़िएगा। उसमें क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर रखा है माइग्रेशन के लिए, तो वो दैट इज नॉट अ थिंग यू गेट कंफ्यूज। बिल्कुल। हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है, मयूर ध्वज सिंह राणा। ये पूछ रहे हैं उन सब स्टूडेंट्स का क्या जो फर्स्ट टाइम जून में एफएमजी का एग्जाम देंगे, अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो वो भी इफेक्ट होंगे उससे? चॉइस आपको दी जाएगी, कोई आपको मतलब बाउंड नहीं करेगा। अगर आता भी है कि आप ड्यूटी पे जाइए, आप मजे आप दीजिए, एग्जाम की तैयारी करिए, वो तो आपके हाथ में है। बट डेफिनेटली जो ड्यूटी पे जाएगा उसको कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, तभी हो जाएगा। बिल्कुल। अंकित चौधरी, कैन एफएमजी ज्वाइन इंडियन आर्मी? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। नो 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 प्रॉब्लम इन दैट। आप सब इक्वल हो जाते हैं वंस योर डिग्री इज रिकॉग्नाइज इन इंडिया। आप और गवर्नमेंट जॉब, आर्मी, कहीं भी आपको जैसे काम करना करिए, कोई नहीं रोकेगा। ओके। Chiranjeev Rohit, sir, Dr. Devi Prasad Shetty has been appointed as National Task Force member by Supreme Court. So I think we can approach him about it because he mentioned about us positively. बिल्कुल चिरंजीव, हम ऑलरेडी उनके साथ टच में हैं, हमने बहुत से मीडियम के थ्रू उनसे कनेक्ट किया है एंड ही इज वेरी होपफुल। उनकी एसोसिएशन ने, जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑलरेडी अपने एंड से रिकमेंडेशन भेजा है। वो भी रिकमेंड कर सकते हैं बट ही कैन नॉट टेक द डिसीजन। डिसीजन
ऊपर से आएगा, मिनिस्ट्री से आएगा और सुप्रीम कोर्ट से आएगा। तो उस डिसीजन का हमें इंतजार है कि वो डिसीजन क्या होता है। Demons King, will they cancel FMG and give permission for internship? देखिए, हम लोग बार बार वही बात कर रहे हैं, क्या होगा, क्या डिसीजन होगा, ये आप, मैं या कोई एक्सपर्ट अभी नहीं जानता है। हम लोग सिर्फ अपने सजेशंस दे सकते हैं कि आप एग्जाम में ग्रेसिंग मार्क्स दे दीजिए, या एग्जाम जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए कट ऑफ डिक्रीज कर दीजिए। तरह तरह के सजेशंस दिए जा सकते हैं, बट क्या होगा इसके लिए अभी हम सबको इंतजार है। और अगर हम जो ऐसे शोज कंडक्ट करते हैं, अगर हमें इसमें भी कुछ अच्छे सजेशंस मिलते हैं, वेरी नेक्स्ट डे हम वो सब सजेशंस जो हैं अथॉरिटीज को फॉरवर्ड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ द लेटर, एंड वी आर वेरी होपफुल कि कोई ना कोई डिसीजन जरूर आएगा और एफएमजीज को भी इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के साथ साथ कोविड में सर्व करने का मौका मिलेगा। सो डॉक्टर आशीष, वी आर मूविंग टू द एंड ऑफ दैट शो। कुछ लास्ट वर्ड्स आपकी तरफ से? लास्ट वर्ड यही बच्चों को बोलेंगे, आप होपफुल रहिए। आप लोग को देखिए, ये लड़ाई आपकी है, हमारी नहीं है। पहली बात तो आपको हमारा सिर्फ साथ देना है। आपको ये होता है कि लीड कौन करेगा, तो जैसे रूस एजुकेशन इज ऑलरेडी लीडिंग, आपके लिए फाइट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा। तो वो जैसे भी आपको गाइड कर रहे हैं आप उनको फॉलो करिए। हम लोग को ट्विटर पे आप लोग सपोर्ट करिए। बाकी हम लोग, हमें जो करना है हमें पता है हमें क्या करना है, लीगली हमें क्या करना है वो हम लोग कर रहे हैं। उसमें आपकी ज्यादा काम नहीं है हमारे लिए। दूसरा, जो आपके रूस एजुकेशन वेरी पोटेंशियल, उनके अच्छे सोर्सेज हैं, वो उसको यूज कर रहे हैं आपके फायदे के लिए। हम लोग भी जो कर सकते हैं आपके लिए करेंगे डेफिनेटली, जो बेस्ट होगा आपके लिए। लेकिन होपफुल रहिए, सब अच्छा ही होगा, क्योंकि समय तो बहुत खराब है। आप देख ही रहे हैं, इससे खराब समय तो कभी दुनिया में आया नहीं, खासतौर से भारत के लिए तो इससे बेकार समय कभी आया ही नहीं था। सारी इंडस्ट्री सफर कर रही है, चाहे ट्रैवल हो, चाहे एयर हो, चाहे बॉलीवुड है, कुछ भी, सबका दिन खराब चल रहा है एक साल से। तो अच्छा ही होगा। अब तो जितना खराब होना था हो चुका है सबके साथ, अब तो इससे खराब हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ हम तरुण राजपूत लिख रहे हैं, एफएमजी से डर नहीं लगता साहब, एनएमसी और भारत सरकार से लगता है। देखिए तरुण, डरना बिल्कुल नहीं है। कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया। तो अपना हौसला कायम रखिए, डिसीजन आप लोगों के फेवर में आएगा। अपने हक के लिए लड़ना सीखिए तरुण। अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट कंट्री तो है नहीं कि वो उठा के आपको रूल दे देगा। ठीक है, कुछ डिसीजन है, आजकल मीडिया थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस है, वो तो रहेगा, गवर्नमेंट के रहते हैं। अदरवाइज वी कैन फाइट, डेमोक्रेटिक कंट्री, इतना डरने की जरूरत नहीं है।